کیا لورن کی عوام نے DDC ممبر کو ووٹ دیا یا لورن کی عوام نے کسی ڈپارٹمنٹ کو ووٹ دیا؟ اگر لورن کی عوام نے ڈپارٹمنٹ سے ہی کام لینا تھا تو آپ میدان میں کیوں ہو؟ آپ کو تو چاہیے تھا آپ ایک لیڈرشپ دکھاتے، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی کو اون کرتے۔ عوام دیکھے کہ جب ان کی سیلری کی بات آتی ہے تب یہ جموں پہنچتے ہیں، تب وہاں جو جموں بیٹھ کے یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی سیلری بڑھا دو، لیکن جب عوام کی بات آئے تو تب کیوں نہیں آپ نے کوئی ایشو ریز کیا؟ تب آپ نے DDC ممبر سے بتائے، DDC ممبر یہاں عوام کو جواب دے کہ یہاں پر آپ نے کوئی ویژنری پروجیکٹ کیوں نہیں لایا، آپ نے کوئی ویژنری پروجیکٹ لانے میں کوشش کیوں نہیں کی؟ یہاں پر آپ نے 2020 میں ایک ویژن کی بات کی تھی، آج بھی مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا اپنی تقریر میں جب آپ الیکشن جیت کے آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ جہاں بھی عوام کو بجلی کی ضرورت پڑے گی میں ایک لائن مین کی طرح کام کروں گا۔ آپ نے ایسے کام کیے کہ آپ کی وجہ سے جیڈا اسکیم فیل ہو گئی، آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے اتنا بڑا 3 کروڑ کا پروجیکٹ فیل ہو گیا، آپ کی وجہ سے جو عوام کا پیسہ پورا لیپس ہو گیا، اس کا جواب دہ کون ہے؟ کیا وہاں پر بھی ڈپارٹمنٹ کی غلطی ہے؟ آپ نے کہا کہ یہاں پر عوام کو جو میں ایک لائن مین کی طرح کام کروں گا، جہاں پر بجلی کی کمی ہوگی، یہاں پر جو ویژن کی بات کی گئی تھی، یہاں پر کہا گیا تھا ویژن آیا ہے ایک نیا، لیکن ویژن تو دور کی بات ہے، یہ ایک روڈ کو جو ایک لائف لائن منڈی لورن کی روڈ، اس کو ٹھیک نہیں کر پائے۔ لورن کی عوام یہی کہتی ہے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا۔ اب وقت ہے کہ DDC ممبر عوام کے سامنے جواب دے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کہیں پہ کوئی غلط کہا تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پہ آئے، عوام کے سامنے بات کریں گے، اور آپ جتنا بھی سچ کو چھپائے، جتنا بھی سچ کو تروڑ مروڑ کے پیش کریں، لیکن حقیقت جتنا بھی آپ ڈپارٹمنٹ کے پیچھے چھپیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سچ کبھی نہ کبھی ضرور سامنے آتا ہے۔ وہ جو ایک فلاسفر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹروتھ کین بی ہیراسڈ بٹ اٹ کین نیور بی ڈیفیٹڈ۔ DDC ممبر کا ٹینیور ختم ہونے کو ہے، اور جب 2020 میں الیکشنز تھے، جس ویژن پہ DDC ممبر نے یہاں عوام سے ووٹ مانگے، جس ویژن پہ DDC ممبر نے یہاں بزرگوں سے، نوجوانوں سے، خواتین سے ووٹ مانگے، آج 5 سال ہونے کو ہے۔ آج DDC ممبر عوام لورن کو یہ بتائے کہ وہ جو فنڈز آپ کو مہیا ہوئے، ایک MLA سے زیادہ فنڈ آپ کو پرووائڈ کیا گیا پر بلاک، اس پہ آپ نے وہ فنڈ کہاں استعمال کیا، وہ آپ عوام لورن کو بتائے۔ اب 5 سال پورے ہونے کو ہے، اب DDC صاحب واپس آ جائیے لورن میں، گراؤنڈ میں، گراس روٹ پہ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ عوام کو بتائے کہ وہ فنڈ آپ نے کہاں استعمال کیا۔ ان سالوں میں گراس روٹ پہ موجود رہا، ان سالوں میں نے عوام کا دکھ دیکھا، ان سالوں میں نے نوجوانوں کا دکھ دیکھا۔ وہ نوجوان جنہوں نے آپ کو 1 سائیڈڈ ووٹ دیا 2020 میں، آپ کو کونسل میں پہنچایا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج نوجوان ڈس اپوائنٹ ہے، آج بزرگ، خواتین سب ڈس اپوائنٹ ہیں، ڈسلوژنڈ ہیں، مایوس ہیں، کیونکہ آپ کا حق تھا کہ آپ کو یہاں موجود رہنا تھا گراؤنڈ میں، آپ یہاں گراؤنڈ میں موجود نہیں رہ پائے۔ میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں، جو آپ پروجیکٹس آپ نے جو بھی کام تھے یہاں نہیں ہو پائے، جو آپ یہاں پروجیکٹ آنے چاہیے تھے وہ اس پہ آپ کبھی آواز نہیں اٹھا پائی، اور جو ہم نے پروجیکٹ منظور کر کے آپ کو دیے اس میں آپ فیل ہوتے رہے۔ یہاں پر میں سب سے پہلے جو تاریخ کا سیاہ باب دور رہے گا، یہ میں جو ون آف دا بگیسٹ فیلئرس، جو ون آف دا بگیسٹ کرمنل نیگلیجنس آپ کی رہی، وہ یہ ہے لورن منڈی کی روڈ۔ لورن منڈی کی روڈ پہ آپ نے کبھی کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ اور اگر آواز اٹھائی آپ نے، وہ صرف میٹنگ میں اٹھائی، آگے پیچھے آپ کہاں رہے؟ آگے پیچھے آپ کہاں غائب ہوتے رہے؟ لورن منڈی کی روڈ جہاں پر ہمارے بزرگ تھے، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جو خواتین جو پریگننٹ لیڈیز تھی ان کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، نوجوان ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 5 سالوں میں ایک بار بھی لورن منڈی کی روڈ میگڈمائز نہیں ہو پائی، اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک بار بھی آپ اس روڈ کی مرمت نہیں کروا پائے۔ پھر لورن سے سلطان پتھری کی بات کروں میں، لورن سے ڈنہ کی بات کروں میں، اس پہ آپ نے کبھی توجہ کیوں نہیں دی؟ یہاں پر میں لورن میں آپ نے جو ایکس رے مشین لائی، آپ نے اس وہ ایکس رے مشین آج بھی ویسی جوں کی تو پڑی ہوئی ہے۔ یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ یہاں پر صرف ایک فارماسسٹ کی پوسٹ ہے، یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ اس کے لیے ایک لیب ٹیکنیشین کی ضرورت ہے، آج تک وہاں لیب ٹیکنیشین کیوں نہیں آیا؟ یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ وہ ایکس رے کو دیکھنے کے لیے، اس ایکس رے کو ایگزامن کرنے کے لیے آپ کو ایک
ऑर्थोपेडिशियन की ज़रूरत पड़ेगी, उस पे आपने कभी जोर क्यों नहीं दिया? लोरन PHC, जब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब MLA थे, आज भी मुझे याद है, लोरन पुंछ बोर्ड मीटिंग में ये तय पाया गया कि लोरन PHC विल बी कन्वर्टेड एंड लोरन PHC विल बी कन्वर्टेड इनटू अ CHC एंड अ न्यू 50 बेडेड हॉस्पिटल विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर। एक नया जो 50 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और उस वक्त की कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दी थी। आज भी उसकी फाइल मौजूद है, आज भी आप देख सकते हो, लेकिन उस पर आपने कोशिश नहीं की। उस पर कभी आपने ये नहीं सोचा कि आवाम को आसानी होगी, 50 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ बनेगा, आवाम को मंडी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आवाम को पुंछ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहाँ भी आप खामोश रहे। आपने कहा कि आपने फायर सर्विस गाड़ी लाई यहाँ पे, लेकिन वो गाड़ी सिर्फ 1 महीना यहाँ पर रही, उसके बाद वापस ले गए ले जाने वाले, वो गाड़ी वापस चली गई, वहाँ पर भी आप फेल हो गए। उसके बाद मैं CFC की बात करूँ, हमारे दौर में लोरन CFC जो है तांत्रे साहब ने मंजूर करवाया, यहाँ पर उसका पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है। लेकिन जब आपको उसका जब इनोग्रेशन की बात आई, तो आपको जब इनोग्रेशन की बात आई तो वहाँ आपको अपनी नेम प्लेट लगानी थी, लेकिन आवाम जानती है वो किस लीडर ने किसने मंजूर करवाया। उसके बाद मैं यहाँ पर जेड़ा स्कीम की बात करूँ, वो हिस्टोरिक प्रोजेक्ट जो तांत्रे साहब ने यहाँ लाया, जेड़ा स्कीम, जिसकी वजह से पूरा लोरन ब्लॉक सैराब होना था, और अगर वो गैल्वेनाइज हो जाता, वो प्रोजेक्ट अगर मंजूर हो जाता, तो मैं कहता हूँ मंडी के कुछ एरियाज को भी वो सैराब करता। लेकिन आपकी फेलियर की वजह से, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वो जो स्कीम है फेल हो गई। और आज जब किसी भी प्रोजेक्ट में आप फेल होते हो, कहीं पे भी जब आपकी नेग्लिजेंस होती है, तब आप डिपार्टमेंट का सहारा लेते हो, तब आप ब्लेम गेम खेलते हो, तब आप कहते हो डिपार्टमेंट की गलती है। आप अवाम लोरन को, नौजवान ने लोरन को, ख्वातीन बुजुर्ग सबको सिर्फ एक बात बताइए, क्या लोरन की अवाम ने DDC मेंबर को वोट दिया या लोरन की अवाम ने किसी डिपार्टमेंट को वोट दिया? अगर लोरन की अवाम ने डिपार्टमेंट से ही काम लेना था तो आप मैदान में क्यों हो? आपको तो चाहिए था आप एक लीडरशिप दिखाते, आपको तो चाहिए था कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप जहां भी काम बनता, जहां भी कहीं पे कोई प्रोजेक्ट, यहाँ कोई काम शुरू हुआ, चाहे वो CFC ही क्यों ना हो, वो प्रोजेक्ट जो चाहे हमारे दौर में मंजूर हुआ, तो चाहे वो किसी और लीडर ने ही क्यों नहीं उसके पीछे कोशिश की, वहाँ तो आप अपनी नेम प्लेट लगाने में आगे पहुँच गए। लेकिन जहाँ आपकी नेग्लिजेंस रही, जहाँ आपका फेलियर रहा, वहाँ पर आप डिपार्टमेंट को आगे लाते हो। मैं यहाँ ATM की बात करूँ, ATM की इनोग्रेशन के लिए आपने ATM की इनोग्रेशन को डिले किया, क्योंकि आप वहाँ पर भी आपको उसका क्रेडिट चाहिए था। लेकिन अवाम में लोरन जानती है वो ATM किस लीडर ने मंजूर करवाया, यहाँ पर किस लीडर की काविशों की वजह से वो ATM यहाँ पर आया। उसके बाद मैं देखिए, जो एक लीडर होता है उसका राब्ता होता है ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे वो मौजूद होता है। इन सालों में जो 2021 से लेकर 20 से लेकर 22 की बात करूं, 23 की बात करूं, 24 की बात करूं, जो असेसमेंट मैंने अवाम की देखी, जो एक लीडर ग्रास रूट पे मौजूद होता है, जब अवाम को जरूरत होती है एक लीडर की, वो तो हमने नहीं देखा। हमने तो अवाम लेफ्ट आउट महसूस कर रही है। यहाँ पर मैं कोविड-19 की बात करूं, जब कोरोना वायरस था, तब आप कहाँ पर थे? तब आपको इलेक्शन का वो विजन याद नहीं आया, तब आपको अपनी तकरीरें याद नहीं आई, तब आपको अपना विजन याद नहीं आया। जब यहाँ पर कोविड-19 था, जब हमारी लेबर बैरून रियासत फंसी हुई थी, जब हमारी लेबर दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में फंसी हुई थी, तब आप यहाँ क्यों नहीं मौजूद थे? तब कौन लीडर यहाँ मौजूद था, वो आवाम जानती है। जब हर साल यहाँ पर बियर अटैक्स होते हैं, हर साल यहाँ पर जंगली जानवरों का खौफ रहता है, उस पर आप कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? उस पर आप अथॉरिटीज़ को क्यों नहीं लिखते कि आवाम के लिए कोई आसानी की जाए? हर साल जब यहाँ पर जंगल में आग लगती है, फॉरेस्ट फायर्स हमें देखने को मिलते हैं, उस वक्त आप क्यों नहीं ग्राउंड पे मौजूद होते हो? ये जो क्राइसिस है, एक जब लीडर होता है वो इन क्राइसिस में मौजूद रहता है। लेकिन DDC मेंबर से मैं यही कहता हूँ, लोरन की आवाम यही कहती है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। अब वक्त है कि DDC मेंबर आवाम के सामने जवाब दे। यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्मेटिव और हिस्टोरिक प्रोजेक्ट जो यहाँ पर तांत्रे साहब ने लाए, यहाँ पर मैं गोंडोला केबल कार प्रोजेक्ट की बात करूँ, उस पर आपने कभी क्यों नहीं बात की? यहाँ पर जो सोलर पावर प्लांट, जो सोलर पार्क यहाँ पर मंजूर हुआ, उस पर आपने कभी जोर क्यों नहीं दिया? यहाँ पर जो हिस्टोरिक
लॉरेन टंगमर्ग रोड यहाँ पर उसका काम शुरू हुआ, उस पर आपने कोशिश क्यों नहीं की कि यहाँ पर सिब की आवाम को, लॉरेन की आवाम को, पूरे पुंछ की आवाम को फायदा होना था, उस पर आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की? आवाम देखे कि जब इनकी सैलरी की बात आती है तब ये जम्मू पहुंचते हैं, तब वहाँ जो जम्मू बैठ के ये प्रोटेस्ट करते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ा दो, लेकिन जब आवाम की बात आए तो तब क्यों नहीं आपने कोई इशू रेज किया? तब आपने डीडीसी मेंबर से बताए, डीडीसी मेंबर यहाँ आवाम को जवाब दे कि यहाँ पर आपने कोई विजनरी प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया, लाया, आपने कोई विजनरी प्रोजेक्ट लाने में कोशिश क्यों नहीं की? यहाँ पर आपने 2020 में एक विजन की बात की थी, आज भी मुझे याद है आपने कहा था अपनी तकरीर में जब आप इलेक्शन जीत के आए थे, आपने कहा था कि जहां भी आवाम को बिजली की जरूरत पड़ेगी मैं एक लाइनमैन की तरह काम करूंगा। कि आपने ऐसे काम किए कि आपकी वजह से जेडा स्कीम फेल हो गई, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से इतना बड़ा 3 करोड़ का प्रोजेक्ट फेल हो गया, आपकी वजह से जो आवाम का पैसा पूरा लैप्स हो गया, उसका जवाब दे कौन है? क्या उस वहां पर भी डिपार्टमेंट की गलती है? आपने कहा कि यहाँ पर आवाम को जो मैं एक लाइनमैन की तरह काम करूंगा, जहां पर बिजली की कमी होगी, जहां पर 95% वोटर्स आपके थे, 95% आपके वोटर्स थे डीडीसी इलेक्शन में, लेकिन वहां पर उनको पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, बुनियादी सहूलियात की किल्लत, उस पर को जवाब दे कौन है? उसका जवाब कौन देगा? अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया, आप जवाब दे। मैं लाइव एग्जांपल्स दे सकता हूँ, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन एक लाइव एग्जांपल आपको मैं दूंगा। यहाँ पर लॉरेन हेडक्वार्टर की जो पंचायत है, ये यहाँ पर एक वार्ड है, उसके वहाँ पर जो मैं कहता हूँ मैक्सिमम वोट्स आपके वोटर हैं वहाँ पर, जो 2020 में आपको वहाँ से वोट आए, वो मैं डाटा भी दे सकता हूँ। उस पर आप मुझे ये बताओ कि जब वो नौजवान आपके पास गए, उनको एक फुट ब्रिज की जरूरत थी, आपने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? आज भी मुझे याद है वो नौजवान हमारे पास जब आए, आज भी उन नौजवानों का दर्द मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, उन नौजवानों की जो इमोशंस में कभी भूल नहीं पाऊंगा, जो उन नौजवानों का जो पेन है मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब वो नौजवान वो अगर आप खुद वहां जाके देखें कि नौजवान अपनी जान, नौजवान बुजुर्ग ख्वातीन अपनी जान को जोखिम में डाल कर कैसे दरिया क्रॉस करते थे, तो बड़ा अफसोस होता है। लेकिन उस वक्त मैं शुरू करता हूँ यासीन साहब का, उस वक्त हमारा एक डेलीगेशन यहाँ से गया, हम पंचायत की रेजोल्यूशन लेकर के यहाँ से जो चौधरी कामरान साहब और खाकी साहब की सदारत में हम मुलाकी हुए, डीसी यासीन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ, उस वक्त के जो डीडीसी थे यासीन चौधरी साहब, उनसे हम मुलाकी हुए और उनका भी मैं बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने भी इसमें हमारा साथ दिया। और आज डीडीसी मेंबर से मैं कहना चाहता हूँ कि आज वो आप देखिए वो पुल वहाँ पर तैयार है और आवाम उसका इस्तेमाल कर रही है, तो वो जिम्मेदारी किसकी थी? वो पुल बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? वो हमारी जिम्मेदारी थी या आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी थी? वो जिम्मेदारी आपकी थी, क्योंकि आप पावर में थे। और चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, चाहे आप सच को कितना ही तोड़ मरोड़ने की कोशिश करें, चाहे आप कितनी अपनी जो नाकामी है इस पर कितनी भी सियासत करने की कोशिश करें, लेकिन जो मैंने पेश किया, जो मैंने यहाँ ये फैक्ट्स आपको बताए, ये बिल्कुल हकीकत पे हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पे कोई गलत कहा, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप स्टेज पे आए, आवाम के सामने बात करेंगे और आप जितना भी सच को छुपाए, जितना भी सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करें, लेकिन हकीकत जितना भी आप डिपार्टमेंट के पीछे छुपे, लेकिन हकीकत ये है कि सच कभी ना कभी ज़रूर सामने आता है। वो जो एक फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि ट्रूथ कैन बी हरास्ड बट इट कैन नेवर बी डिफीटेड। अगर नौजवान चाहता है कि यहाँ पर तब्दीली आए, यहाँ पर इनकलाब आए, तो नौजवानों को ज़रूरत है नौजवान खड़े हों, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप नौजवान घर बैठे रहे और यहाँ कोई और आपकी आवाज़ उठाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप तारीख को भी उठाए, नौजवान तारीख उठाए, देखे कि जब भी किसी मुल्क में इनकलाब आया, वहाँ नौजवानों का अहम रोल था और नौजवान वहाँ आगे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत से है फ़कत इतना ताल्लुक़ मेरा कि कोई जालिम मेरे शहर का सुल्तान न बन जाए। काज़मी साहब, आपने पुंछ से सफ़र लॉरेन का किया होगा, आपने देखा होगा कि रास्ता जो है ये बिल्कुल एक नाले की शक्ल तब्दील कर चुका है। आम आदमी का चलना बहुत दुश्वार हो चुका है। जैसे कि वो पैदल पुराने ज़माने में घोड़े चलते थे ना,
इस रास्ते की वो कंडीशन हो चुकी है। अब बहुत सारे पेशेंट को जब यहाँ से मंडी या पुंछ रेफर करते हैं डॉक्टर साहिबान, तो कई ऐसे होते हैं डिलीवरी के केस, मुझे लगता है कि वो रास्ते में ही इतनी हालत उनकी खराब हो जाती कि बताया नहीं जाता। दूसरी बात कि जिन लीडर साहिबान को लोगों ने एतमाद किया था, उनको वोट दिया था, इक़्तिदार में उनको लाया था, तो उन लीडर साहिबान को आज वो जब ब्लैक गाड़ी में बैठकर ऊपर से ब्लैक चश्मा लगाते हैं, उन्हें रोड की सिचुएशन नजर नहीं आती है। क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आता कि यहाँ के ऊपर से उनको कोई गाइडलाइन ऐसी है कि आप बात ना करें। जब वोट लेने होते हैं, जब अपनी कुर्सी की लालच होती है, तब तो वो घर घर पहुंचकर कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके हर मसाइल को हम उजागर करेंगे, हल करेंगे। लेकिन आज जब वो इस रोड पर खुद वो लीडर साहिबान चलते हैं, तो क्या उन्हें शर्म नहीं आती है? उन्हें नजर नहीं आता कि रोड की क्या हालत है? वो उन लीडरों को चाहिए था कि आज पब्लिक के बीच में बैठकर इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं कि हमारे मंडी से लेकर लोरन और बेला बाला सुल्तान पथरी की रोड की कितनी खस्ता हालत है। उसके अलावा अभी मुझसे पहले मौसूफ ने अर्ज किया था कि यहाँ एक गाड़ी डीडीसी के दौर में आई, जो 5 ब्रिगेड की गाड़ी थी, 5 साल हो चुके, 1 महीना वो यहाँ लोरन के अंदर रही, उसके बाद में वो यहाँ से गायब हो गई। जैसे डीडीसी साहब यहाँ जीतने के बाद गायब हुए, पुंछ की तरफ रुख किया, तो वो गाड़ी भी यहाँ से पुंछ की तरफ रवाना हो गई। अब ये डीडीसी साहब को पता होगा कि वो किस जगह है, कहाँ है और कहाँ नहीं है। उसके अलावा डीडीसी साहब ने ये कहा था कि लोरन के अंदर हॉस्पिटल के अंदर मैंने बहुत सारे काम करवाए। एक एक्सरे की मशीन जो उन्होंने मंगवाई थी, 5 साल से वो मशीन अभी पैकिंग यानी गत्ते के अंदर फोल्ड की हुई है, अभी रखी है। हमें लगता है कि सावन का महीना आ रहा, उसे कहीं सेफ जगह पर रखा जाए, ऐसा ना हो कि बरसात हो और उसे जंग ना लग जाए। जैसे डीडीसी साहब के ये कारनामे आप देखते होंगे कि मंडी से लेकर सब्जियां हो, सलूनियां हो, फतेहपुर की रोडों की कितनी खस्ता हालत है। मंडी के डीडीसी साहब, उन्होंने आज तक उनके कान पे जून तक नहीं रेंगी कि लोगों ने जिस एतमाद, जिस भरोसे पे उनको कामयाब बनाया था। जबकि डीडीसी के दौर में उन्होंने ये वादे किए थे कि हम 370 और 35A को वापस लेकर आएंगे, हम सब मसाइल हल करेंगे। ना तो उनका वो 35A वापस आया, ना वो 370 वापस आया। हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा नहीं, उतर क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपने देखा होगा कि उमर साहब के क्या कहते हैं कि मेरे पास कोई पावर नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब इनको ये भी मालूम था कि ये यूटी है, यहाँ हम जिस तरीके से सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारे पास कितने पावर होंगे, कितने इख्तियारात हमारे पास होंगे, हम उसी हिसाब से पब्लिक से वादे करेंगे। लेकिन वो 12 सिलेंडर गैस, हमें लगता है कि वो लखनपुर से इधर अभी तक नहीं आए। उसके अलावा इन्होंने जो वादा किया था 10 किलो राशन पर हेड देंगे हम, वो 10 किलो राशन अभी तक इनका दिल्ली से लोड नहीं हुआ। उसके अलावा 200 यूनिट इन्होंने जब बिजली लोगों को देने के लिए कहा, तो वो बिजली आज तक इनका कोई भी वादा अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया। जितने भी वादे थे सब खोखले होके नजर आ रहे हैं। उसके अलावा एमएलए साहिबान भी बड़े दावे करते हैं हमने ये करना, हमने वो करना, फिर बीच में ये कहते हैं, जब शुरू में उन्होंने इख्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि जो लीडर हारे हैं वो देखें मुझे कहां कहां से मार पड़ी है, वो अपने वोट को गिने, अपोजिशन ना करें। तो हम कहते हैं कि अपोजिशन ना करें, बल्कि आप बताएं 9 महीने के अंदर आपने कौन से प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किए हैं, कौन से काम आपने यहां पर शुरू किए हैं, हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, स्कूलों की क्या कंडीशन है यहां पर, और ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियां यहां पर ड्राइवर हजरात ने लेकर लोन पे यहां पर वो काम करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, वो हर 8वें दिन वो गाड़ी गैराज के अंदर यानी सर्विस स्टेशन पहुंच जाती है, उसका इंजन खुल जाता है बेचारे का। वो मजदूर तबका जिन्होंने लोन लेकर गाड़ियां ली हैं, कम से कम खुदारा उन पर भी तरस खाएं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है, एलजी साहब से भी गुजारिश है कि लोरन जो है इस टाइम डीडीसी हर तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। एमएलए साहिबान भी कोई कोशिश नहीं कर रहे कि लोरन, सब्जियां और सलूनिया की रोड, फतेहपुर की रोड पर इसके ब्लैक टॉपिंग हो या कोई काम हो। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि इस गरीब आवाम, ये बैकवर्ड इलाका है, यहाँ कोई बिजनेस नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस पर ध्यान दिया जाए।